ایک پرانا سا کچا مکان ہے جہاں بابا رشید اور اماں بی بی رہتے ہیں۔ دونوں بوڑھے ہیں، ہاتھ پاؤں کامتے ہیں، بیماری نے توڑ دیا ہے۔ ان کے 4 بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا سلیم شہر میں بہت امیر ہے، بڑی کوٹھی اور کاروبار ہے۔ دوسرا بیٹا ندیم درمیانی حال کا ہے اور چھوٹا سا دکاندار ہے۔ تیسرا بیٹا کاشف مزدوری کرتا ہے اور مشکل سے گزارا کرتا ہے۔ سب سے چھوٹا بیٹا انور ہے جو بے روزگار مگر ماں باپ کا بہت فرما بردار ہے۔ اماں بی بی کمزور آواز میں، رشید اب بڑھاپا ہے، بیٹے کب کام آئیں گے؟ شاید ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہے کہ بڑھاپے میں بیٹے ساتھ نہیں، صرف دعائیں ساتھ رہیں گی۔ بابا رشید اور اماں بی بی نے سوچا کہ کیوں نہ زندگی کے آخری لمحات وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ گزاریں۔ سلیم کی کوٹھی میں چمک دمک ہے، نوکر، گاڑیاں اور مزے مزے کے کھانے۔ اماں اور بابا خبر لینے شہر پہنچتے ہیں۔ اماں بی بی محبت سے، بیٹا سلیم ہم تجھے دیکھنے آئے تھے، دل چاہتا ہے تو کچھ دیر ماں کے پاس بیٹھ جا۔ سلیم موبائل پر مصروف ہے۔ سلیم لاپرواہی سے، امی ابھی مصروف ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اماں تھکی ہوئی آواز میں، بیٹا ہم چاہ رہے تھے کچھ دن تمہارے پاس رک جائیں۔ سلیم چڑ کر کہتا ہے، اماں میرے پاس ٹائم نہیں، آپ لوگ دیہات کے لوگ ہو، یہاں کی زندگی سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیے اتنے بڑے گھر میں آپ دونوں کیا کریں گے؟ ہم دونوں تو سارا دن کام میں بیزی رہتے ہیں۔ اس عمر میں آپ دونوں کو اپنے گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ بابا رشید آنکھوں میں آنسو لیے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ بابا رشید اور اماں بی بی اپنے دوسرے بیٹے ندیم کے گھر جاتے ہیں۔ وہ چھوٹے سے مکان میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اماں بابا آپ یہاں خیریت تو ہے نا؟ ہاں بیٹا، ہم کچھ دن تمہارے پاس یہاں رکنے آئے ہیں۔ ندیم الجھن میں، ابا اماں آپ آ گئے، خوشی ہوئی، لیکن حالات دیکھ رہے ہیں، مکان چھوٹا ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ان سب کے ساتھ آپ دونوں کا خرچہ اٹھانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ بیٹا ہم بوجھ نہیں، صرف دعا کے محتاج ہیں۔ ندیم آہ بھرتے ہوئے، اب وہ میں چاہتا ہوں لیکن بی بی کہتی ہے کہ جگہ نہیں ہے، آپ انور کے ساتھ ہی رہیں، وہ فارغ ہے۔ ماں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بیٹا بڑھاپے میں سہارا چاہیے ہوتا ہے، جگہ نہیں۔ بابا رشید اور اماں بی بی اپنے بچوں کا یہ رویہ دیکھ کر بے حد مایوس ہوتے ہیں۔ اماں بابا اپنے تیسرے بیٹے کاشف کے پاس جاتے ہیں۔ کاشف دن بھر مزدوری کر کے تھکا ہارا ہے۔ ابا میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ سہولت، لیکن دل ہے، آپ چاہیں تو میرے پاس رہ سکتے ہیں۔ بیوی جھنجھلا کر بولتی ہے، کاشف پہلے ہمارے بچوں کا پیٹ پالتے ہو، اب ماں باپ کی ذمہ داری بھی اٹھاؤ گے؟
पहले अपनी बीवी और बच्चों के हकूक तो ढंग से पूरे कर लो, फिर ये जिम्मेदारी अपने गले डालना। काशिफ गुस्सा बर्दाश्त करता है और खामोश रहता है। बाबा रशीद दिल पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, हम तुझे तंग नहीं करेंगे, बस दुआएं ही देंगे। अम्मा थके लहजे में, चलो अनवर के पास चलते हैं, वही हमें संभाल सकता है। अब अनवर ही हमारे बुढ़ापे का आखिरी सहारा है। अरे जाइए जाइए, उस नकारा नखट्टू के पास, हम भी देखते हैं वो बेरोजगार कैसे तुम दोनों का बोझ उठाएगा। खुद का बोझ तो वो आज तक उठा ही नहीं सका। अम्मा बीबी दिल ही दिल में सोचती है कि अकेले माँ बाप 4 बेटों को तो पाल सकते हैं, लेकिन अफसोस 4 बेटे मिलकर भी बूढ़े माँ बाप को नहीं संभाल सकते। वो दोनों अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अनवर के पास जाते हैं। अम्मा अब्बा, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप अब बस मेरे साथ रहेंगे। अम्मा हैरत से, बेटा हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम बस थोड़ी देर तक यहाँ से चले जाएंगे, हम बस तुम्हें मिलने आए थे। अम्मा, मैं आप दोनों को कहीं जाने नहीं दूंगा, आप अब दोनों बस मेरे साथ रहोगे। अनवर अनपढ़ और गरीब है, मगर वालिदैन के साथ मोहब्बत करता है। छोटी सी झोंपड़ी में उनको खुश रखता है। वो दिन रात मेहनत करता है और उन्हें हर लिहाज से खुश रखने की कोशिश करता है। कभी अपने लिए खाना कम कर देता है ताकि वालिदैन को ज्यादा दे सके। अम्मा, आप ये रोटी खा लें, मैंने अभी खा ली है। अम्मा हंसकर कहती है, बेटा हम जानते हैं तू हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है। बाबा रशीद आंसू साफ करते हैं। तुम्हारी खिदमत ने हमारे दिल को सुकून दिया है। बाबा, आप ऐसा मत कहें, ये तो मेरा फर्ज है। अब आप दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। वो दिनों इस झोंपड़ी में सादा, पुरसुकून और हंसी खुशी से अपना वक्त गुजारते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक बाबा रशीद की तबीयत बिगड़ जाती है। अम्मा और अनवर बहुत परेशान होते हैं। अनवर, जा जाकर डॉक्टर को बुला ला, अब तेरे बाबा चल नहीं सकते। अम्मा, आप फिक्र न करें, आप अब्बा का ख्याल रखें, मैं अभी शहर जाकर डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अनवर भागकर शहर के अस्पताल जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है पैसे दो तो दुआ मिलेगी। अनवर ये सुनकर बहुत फिक्रमंद होता है, क्योंकि अनवर के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अनवर सोच रहा था कि वो अब किसकी मदद ले। अनवर पहले सलीम के पास जाता है। भाई, अब्बा की हालत खराब है, थोड़ी मदद कर दो। सलीम सर्द लहजे में, मेरे पास वक्त नहीं, कल मेरी बिजनेस मीटिंग है। भाई, आपके पास इतने पैसे हैं, आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं आपको कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। मैंने बोला ना, मैं बहुत बिजी हूँ, चलो जाओ यहाँ से। यही पहले मेहनत की होती तो आज मेरे पास ना आते मदद के लिए। अनवर नदीम के पास जाता है। भाई जल्दी चलो, अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, अब्बा को हमारी जरूरत है। मैं चाहता तो हूँ, लेकिन बीवी इजाजत नहीं देगी, इसलिए तुम अकेले वापस चले जाओ। अनवर उसी फिक्रमंदी के साथ वापस लौट जाता है। अनवर अपनी आखिरी उम्मीद लेकर
काशिफ के पास जाता है। भाई दिल तो है, लेकिन मेरे पास खुद दुआ के पैसे नहीं। अनवर टूटे दिल के साथ वापस लौटता है। बाबा रशीद बिस्तर पर पड़े हैं। सब भाई वहां आते हैं। अब्बा, हम तीनों को माफ कर दें, हम तीनों ने आने में बहुत देर कर दी। बाबा कमजोर आवाज में कहते हैं। बेटो, तुम में से कुछ के पास दौलत है, कुछ के पास गुर्बत, लेकिन याद रखो, माँ बाप का हक दौलत से ज्यादा है। दौलत का गुरूर सब कुछ ले सकता है, लेकिन वालिदैन की दुआ सब कुछ दे सकती है। बाबा रशीद आंखें बंद करके दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अम्मा रोती है। सलीम और दूसरे भाई शर्मिंदगी से रोते हैं। हमने दौलत के गुरूर में सब खो दिया, हत्ता कि अब्बा के आखिरी वक्त भी हमारे साथ ना था। अब्बा के बाद अम्मा अब अपने चारों बेटों के साथ मिलजुल कर एक ही घर में रहती हैं। चारों बेटे माँ के साथ मिलकर एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, दौलत, मकान और आसाइशें बुढ़ापे के माँ बाप की खिदमत के बगैर कुछ नहीं। बुढ़ापे में माँ बाप की दुआ ही सबसे बड़ी दौलत है।